کی عطا فرمائے۔ یہ ایک شرف ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے، یہ ایک مودت کا سرچشمہ ہے۔ یہی وہ بندہ ہے جو پروردگار عالم کے قریب ترین کرتا ہے، اس لیے کہ میرے مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اس ایمان کا نام ہے جسے چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ان حضرات کے قلوب کا، کیا کہنا ان حاضرین کی منزلت کا، کیا کہنا ان حاضرین کے شرف کا کہ جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حاضری پانے والوں، یہاں پر اپنے آپ کو معراج کی منزلوں میں پانے والوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ عظیم بارگاہ ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہی انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سعادت عظمیٰ حاصل ہوتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان طیب و طاہر بنتا ہے، یہی وہ انسان، یہی وہ بارگاہ ہے جہاں پر انسان معراج کی منزل پاتا ہے۔ اس لیے کہ جوش ملی آبادی نے ایک عجیب منظر جو ہے وہ پیش کیا اور اسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ لے اب نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ یہ عظیم ترین بارگاہ ہے جس میں آنے کے بعد آپ شرف پا رہے ہیں۔ پروردگار عالم سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی اور بہت عظیم ساتیں ہیں جس میں آپ ذکر اہل بیت اطہار السلام سے مشرف ہو رہے ہیں اور شرف پا رہے ہیں۔ دنیا شاعری کے ماشاءاللہ اس لیے کہ جو آپ کا پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے، جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے، جو اوصیاء اولیاء انبیاء کا پیغام ہے، جو اہل بیت اطہار السلام کا پیغام ہے، آپ وہ پیغام ان مجالس اعزاء سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے آصف جلال بجنوری صاحب بہت خوبصورت ترین مصرے پیش کرتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں کہ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیال لے اور پیار دے۔ عجیب مصرے کہے اور عجیب حقیقت واضح فرمائی کہ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیال لے اور پیار دے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے۔ یہ شرف آپ کو مل رہا ہے، یہ عزتیں آپ کو مل رہی ہیں، یہ علم کے سرچشمے یہیں سے واہ ہوتے ہیں، انسان کا حسب نسب یہیں سے طیب و طاہر ہوتا ہے، انسان کے دل میں انسانیت یہیں سے اجاگر ہوتی ہے، انسان اس در پر آنے کے بعد معراج کی منزلیں پانے لگتا ہے۔ اور اسی لیے تو مرزا دبیر اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغرب کی جانب کو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ یا پھر مرزا دبیر علی اللہ مقامہ یوں گویا ہوتے ہیں اور یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کی عزتیں ہیں، یہ آپ کی رفتیں ہیں، یہ آپ کا اعلیٰ مقام ہے، یہی ذکر آپ کی عزتوں میں چار چاند لگاتا ہے۔ مرزا دبیر علی اللہ مقامہ اس طریقے سے گویا ہوتے ہیں اور شرف انسانیت واضح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں جو روزے میں باریاب ہو جاتا ہے، جو روزے میں باریاب ہو جاتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پہ چراغ وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جس میں آپ علماء ذی وقار کے بیانات سے محظوظ اور مستفیض ہو رہے ہیں، علماء اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ علماء ہماری عزت ہیں،
उलमा हमारा वक़ार है, उलमा हमारी पहचान है, उलमा हमारी शिनाख्त है, उलमा हमें इज़्ज़तें अता करते हैं, उलमा हमें रिफ़तें अता करते हैं, उलमा हमारा चेहरा है, उलमा हमारी पाकीज़गी है, उलमा हमारी तहरतें हैं, उलमा हमारा इल्म है, उलमा हमारी तहरतें हैं, उलमा हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, उलमा हमारी ताकत व तवानाई है, उलमा हमारा चेहरा है, उलमा परवरदिगार आलम की अजीम नेमतें हैं जो ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें मैसर हुई हैं, उलमा जिनकी वजह से हम बोल रहे हैं, उलमा जिनकी वजह से हक़ व बातिल में इम्तियाज़ पैदा होता है, उलमा जिनकी वजह से इल्म मैसर होता है, उलमा जिनकी वजह से इंसान तारीकी से निकल कर नूर की रोशनी में आता है, उलमा ही की वजह से ये रानाइयाँ हैं, उलमा ही की वजह से ये खूबसूरतियाँ हैं, उलमा ही की वजह से ये ज़बानें हैं। इसलिए कि उलमा जब अपने बिल्कुल हकीकी इम्तियाज़ के साथ वाज़े होते हैं और गोया होते हैं तो फिर यूँ गोया होते हैं और यूँ बयान करते हैं कि अली ही हमारी इज़्ज़त है, अली ही हमारी रिफ़त है, अली ही हमारी बुलंदी है, अली ही हमारा इक़ान है, अली ही हमारी मेराज है, अली ही हमें इल्म अता करता है, अली ही हमें शऊर अता करता है, अली ही हमारी पाकीज़गी है, अली ही हमारी तहरत है। इसलिए कि उलमा ने हदीस रसूल को वाज़े करते हुए इस तरीके से बयान किया कि अली की मोहब्बत वो नेकी है कि जिसके होते हुए कोई बदी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अली का बुग़्ज़ वो बदी है जिसके होते हुए कोई नेकी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। मचल रहे हैं मचलने वाले, तड़प रहे हैं तड़पने वाले, सदा से जलते हैं जल रहे हैं वो बुग़्ज़ हैदर में चलने वाले। अजीब सिलसिला है शौकत, अजीब हमने रविश ये देखी, अली के आगे ही भौंकते हैं अली के टुकड़ों पे पलने वाले। हैदरी हैदरी अजीब सिलसिला है शौकत, अजीब सिलसिला है शौकत, अजीब हमने रविश ये देखी, अली के आगे ही भौंकते हैं, हाँ अली के टुकड़ों पे पलने वाले। अली की मंज़िलत अज़ीम है, अली की मंज़िलत को कोई पहचान नहीं सकता। फ़ज़ाइल अली से तज़किया नफ्स होता है। खुश नसीब हैं वो अफराद जो इस ज़िक्र से अपने आप को कामिल व अकमल कर रहे हैं। नौजवानों, तुम कौम का चेहरा हो, नौजवानों तुम कौम की पहचान हो, नौजवानों तुम कौम का सरमाया हो। बुजुर्गों ने जो बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ ये सरमाया आपके सुपुर्द किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसी मेहनत व मशक्क़त और उसी अमानतदारी के साथ इस सिलसिले को आने वाली नस्लों के सुपुर्द कर दो। इसलिए कि जो इस ज़िक्र से वाबस्ता रहता है वो मरने के बाद भी जिंदा है, जो इस ज़िक्र से दूर है वो जिंदा रहते हुए भी मुर्दा है। हज़रत ये सालाना मजालिस का सिलसिला जारी और सारी है, यहाँ पर आने वाला कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, इसलिए कि एक रिश्ता बनता है जो सबसे अहम तरीन है, जो तमाम रिश्तों को आबरू और इज्जत अता करता है, वो है मौलाइयत का रिश्ता, वो है मुहिब अली का रिश्ता। लिहाजा यहाँ एक दूसरे की हिफाजत करो, इसलिए कि आप सिपाही इमाम ज़मान हैं, सिपाही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, आप शहजादी के सिपाही हैं, और जो अमानतदार सिपाही होता है वो कभी अमानत में खयानत नहीं करता। नौजवानों, इस सरमाए को बचा कर रखो और पूरी दयानतदारी के साथ, पूरे इस्तेहकाम के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ इस ज़िक्र की हिफाजत करते रहो। ये खुश नसीबियाँ हैं आपकी कि आपको ये ज़िक्र मैसर हो रहा है कि आप इस ज़िक्र से वाबस्ता हैं। वरना रज़ा सिरसिवी साहब यूँ फरमाते हैं कि नस्ल में जिसके तहारत नहीं मिलने वाली, जहाँ जहाँ ज़ात तशरीफ़ फरमा है, या आपकी ज़बान है, या आपकी हकीकतें हैं, या आपकी रानाइयाँ हैं। रज़ा सिरसिवी साहब फरमाते हैं कि नस्ल में जिसके तहारत नहीं मिलने वाली, उसको मौला की मोहब्बत नहीं मिलने वाली। अब वाक़ियन मौला की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है, अमीर कायनात की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। ये कहने का तो हक़ ही नहीं बनता बयान करने वाले का कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं।
आप हसास दिल हैं, बाज़मीर हैं, बिल्कुल धड़कता हुआ दिल रखते हैं, और यही धड़कने हैं आपकी जो कायनात को मुतहर्रिक किए हुए हैं। नस्ल में जिसके तहारत नहीं मिलने वाली, उसको मौला की मोहब्बत नहीं मिलने वाली। वो तो बस नस्ल की खामी थी, उलझ बैठा यजीद। नौजवानों, नस्ल में जिसके तहारत नहीं मिलने वाली, उसको मौला की मोहब्बत नहीं मिलने वाली। वो तो बस नस्ल की खामी थी, उलझ बैठा यजीद। जानता खूब था बैयत नहीं मिलने वाली। हैदरी! जितने हज़रात तशरीफ फरमा हैं, अभी आप इबादत इलाहिया से माशाल्लाह सरशार होकर मुसल्ला इबादत पर तशरीफ फरमा है, यानी फर्श अज़ा पर तशरीफ फरमा है। जहाँ जहाँ हज़रत तशरीफ फरमा है, सब मौला के चाहने वाले हैं, और पूरा खित्ता ये फर्श अज़ा है, अज़ाए फर्श है। आप जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा है, वहीं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देते हुए, अपनी हाज़िरी का सबूत देते हुए, दोनों हाथ बुलंद करके 3 मरतबा कहें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। नारे हैदर नवाए बूज़रस्त, अगर चाज़ हल्के बिलालो कंबरस्त, बोल नारा हैदरी। हज़रत, इसी के साथ साथ आप ये पैगाम समाअत कर रहे हैं और आगे आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये आपकी हौसला अफजाइयों से ये जितने कैमरे आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे गिराफ एजेंसी अबू ज़र भाई जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और बराबर इस प्रोग्राम को कवरेज करते हैं, हमारे अज़मत भाई जो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे नशर करते हैं और दुनिया के गोशे गोशे में, हमारे कसीम भाई जो सरज़मीन नजफ़ हिंद ही से ताल्लुक़ रखते हैं और 72 यानी 72 चैनल के नाम से ये चैनल चला रहे हैं, और उरूसुल बिलाद मुंबई जैसी जगह में इन्होंने अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया है और बड़ी मोहब्बतों के साथ ये पैगाम नशर कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि इस्लाम क्या है, तालीमात इस्लाम क्या है। इसलिए कि इस्लाम, हकीकी इस्लाम क्या है, शायर यूँ कहता है कि बशर की सरफराजी का मुझे नाम कहते हैं, हकीकत में खुदाए पाक का पैगाम कहते हैं। मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ए नज़र वालों, मैं किरदारों में मिलता हूँ, मुझे इस्लाम कहते हैं। मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ए नज़र वालों, मैं किरदारों में मिलता हूँ, मुझे इस्लाम कहते हैं। मोहतरम नसीमुल हसन बाकरी साहब, अली गाजी साहब, कसीम साहब, कलीम असगर बिजनौरी साहब से इल्तमास की जाती है। हाज़रीन, मौला के चाहने वाले बड़ी मुनकसुर मिजाजी के साथ, दिल की लगाव, दिल के झुकाव के साथ फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ फरमा है। मज़लूमा बीवी को उनके नौनिहालों का पुरसा पेश करने के लिए जैसी भी फहरिस्त है उलमाए किराम की, खुतबाए ज़वील एहतराम की, वो आने के बाद गोशगुजार फरमाएँ। और जो अब नमाज ज़ोहरैन के बाद से नमाज इशा और नमाज इशा के बाद का प्रोग्राम है, वह आप आने के बाद हाज़रीन के गोशगुजार फरमाए। ये मौला के चाहने वाले, ये मौला की मोहब्बत में जीने और मौला की मोहब्बत में मरने वाले यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इसलिए मैं अरबाब विला यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बड़ी मोहब्बतों के साथ सभी हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। क्यों ना हो, इसलिए कि ज़ायरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। सईद शहीदी के मैं कुछ मिसरे पेश करता हूँ और वो यूँ गोया होते हैं कि मज़हरे किब्रिया याली, मज़हरे किब्रिया याली, नफ्से खैरुल वरा याली। कैसे बंदा तुझे मैं कहूँ, दिल नहीं मानता याली। कैसे बंदा मैं तुझे, कैसे बंदा तुझे मैं कहूँ, दिल नहीं मानता याली। नौजवानों, तालीमात अली अलैहिस्सलाम को अपना शियार बना। मेरे मौला ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया, अपने चाहने वालों की जब रविशों को देखा। माँ और बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हमारी बुनियाद, हमारी असास में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ताकत और सच्चाइयाँ हैं तो वो माँ बहनों की इफ़्फ़त और इफ़्फ़त है। माँ बहनों को इस बात का पासो लिहाज रखना चाहिए कि आप किसकी कनीज़ हैं, किसकी कनीज़ी से आप मंसूब हैं, लिहाजा वैसा ही किरदार पेश करना चाहिए। जो भी अपने को कहे
فاطمہ زہرا کی کنیز، اس کی آواز کبھی گھر سے نہ باہر نکلے۔ یہی کردار ہے آپ کا، آپ کی سچائیاں ہیں، اس لیے کہ ماں اگر صاحب کردار ہوتی ہے تو معاشرے کو خمینی ملتا ہے۔ ماں اگر صاحب کردار ہوتی ہے، پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، تعلیمات آل محمد علیہ السلام کو اپنا وتیرہ بنائے ہوتی ہے، تو زمانے کو خمینی، حزب اللہ، خامنہ سیستانی جیسے عظیم رہنما ملتے ہیں۔ اور اگر ماں بد کردار ہوتی ہے تو کبھی زمانے کو رشدی ملتا ہے، کبھی بد کردار افراد ملتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبیاں ہیں آپ کی کہ پروردگار عالم نے اپنی کنیز خاص سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں وہ ماں اور بہنوں کے ساتھ عزت اور حفت عطا فرمائی کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ شیعت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے نوجوانوں، لیکن شیعت کبھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہارا وتیرہ یہ بنتا ہے، تمہارا دستور یہ بنتا ہے، تمہارے اصول اور آداب یہ بنتے ہیں، تمہارا محب علی علیہ السلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو، کوئی بولے یا نہ بولے، لیکن آپ کا بولنا فرض ہے، آپ کا بولنا واجب ہے، آپ کا بولنا فرض ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب نے بہترین طریقے سے عکاسی کی اور بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے نظم کرتے ہیں، ہم نفسیات کرب و بلا کو پڑھے ہوئے دیکھا جہاں بھی ظلم وہیں اٹھ کھڑے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حق سے وابستہ رہیں، ظلم کے خلاف بولتے رہیں۔ مجلسوں کا مقصد یہی ہے، یہاں پر حاضری کا مقصد یہی ہے، اس لیے کہ کائنات کی عظیم ترین اور مظلوم ترین ذات ہے ذات علی علیہ السلام، جسے اصبر الصابرین کہا جاتا ہے۔ آپ کی خوش نصیبیاں کہ آپ نے اس عظیم انسان کی بارگاہ میں یہ شرف پایا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، اگر میری آواز کارکنان حضرات کے گوش گزار ہو رہی ہے تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں نسیم الحسن باقری صاحب سے، علی جناب مولانا علی غازی صاحب سے، قسیم عباس صاحب سے، سید مہدی صاحب سے، کلیم اصغر بجنوری صاحب سے، وہ علماء کرام کے ساتھ پنڈال میں۔ حضرات بڑی معذرت خواہ ہیں، یہاں مولا کے چاہنے والے ہیں، اور یہی کنیز خاص اگر کوئی ہیں یہاں پر، سب ایسے کنیز خاص ہیں تو آپ اپنے ساتھ انہیں لے کر جائیں اور جا کر زیارت کرائیں۔ ڈائس پہ یہاں اچھا سا محسوس نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی آئے، مستور آئے، آپ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ میں محترم جناب وصال مہدی اور میں محترم جناب پیش رہنے والے مثال مہدی صاحب سے التماس کر رہا ہوں، بنٹو صراف سماج سیوکا و وریشٹھ بھاجپا نیتری پورو چھیتری اپادھیکش میرٹھ پرانت سیوا بھارتی یہاں پر تشریف لائی ہوئی ہیں۔ ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کمیٹی کے حضرات سے التماس کی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ کی یہ سماج سیوکا صاحبہ تشریف لائی ہوئی ہیں، آپ ان کا خیر مقدم فرمائیں اور شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ لفظ شکریہ سے حالانکہ شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، جو کوئی بھی وابستہ ہوا کرتا ہے ان کے رتبات بہت بلند و بالا ہوا کرتے ہیں، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا کرتے ہیں ان کے رتبات عظیم ہیں، وہ قابل ستائش ہیں۔ کمیٹی کے افراد اگر یہاں پر ممبران حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں تو میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ یہاں پر بنٹو صراف سماج سیوکا و وریشٹھ بھاجپا نیتری صاحبہ پورو چھیتری اپادھیکش میرٹھ پرانت سیوا بھارتی اتر پردیش کاریالیہ یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں۔ حضرات یہ ایک پرچی اور آئی ہے، آپ ان کے لیے بھی جملہ مرحومین کے ساتھ سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں۔ حسرت النساء بنت زاہد علی، ان کے لیے بھی آپ سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں۔ محترم جناب وصال مہدی صاحب، مثال مہدی صاحب یا اپادھیکش صدر محترم سیکریٹری نائب صدر سیکریٹری یا ممبران حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ نسیم الحسن باقری صاحب سے
हुसैनिया ना हज़रात, इस मजलिस अज़ा के बाद अंजुमन हुसैनिया मेमन सादात नोहाखानी और सीनाजानी के फ़राइज़ अंजाम देगी, जिसके नोहा शायर अहले बैत आसिफ जलाल साहब हैं। अंजुमन हुसैनिया मेमन सादात जो मुनाकिब मजलिस इस वक्त की होने वाली है, इस मजलिस अज़ा के बाद अंजुमन हुसैनिया मेमन सादात जिसके शायर हैं जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब, आप उनको बराबर मुख्तलिफ़ नोहा खानों की ज़बानी समात करते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ जनाब नसीमुल हसन बाकरी साहब से कि आप अपने खुतबा अपने ज़ाकिरीन को लेकर इस वक्त की जो फहरिस्त है, इस वक्त जैसा ऐलान होना है, आप बराए करम यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मौला के चाहने वाले फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ फरमा हैं और ज़ाकिर को अपने ख़तीब को सुनने के लिए निगाहें मुंतज़िर हैं। इल्तमास की जाती है कमेटी के अफराद से और कारकुनान पेश रहने वाले सभी हज़रात से, वैसे तो सभी मौला के चाहने वाले हैं, सभी मेम्बरान हैं, सभी सेक्रेटरी सदर साहिबान हैं और सभी मौला की खिदमत करने के लिए और मौला के ज़ायरीन की जूतियाँ सीधी करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो बहुत शरफ़ है आपके लिए। हज़रात, मैं इसी के साथ इल्तमास कर रहा हूँ साहिल बिजनौरी साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में आप मुख्तसर सा कलाम पेश करें, इसलिए कि यहाँ हमारी समाज सेविका साहिबा व वरिष्ठ भाजपा नेत्री साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाई हुई हैं। मैं इन्हीं कनीज़ान जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से वैसे तो इल्तमास कर रहा हूँ, या जो भी निज़ाम या जो भी यहाँ दस्तूरुल अमल होगा प्रोग्राम का, आप उसी एतबार से शायद दो चार लफ्ज़ ये कहें। वैसे तो इन्हें बारगाह में जाना चाहिए था और वहीं पर जो कुछ भी खिराज अक़ीदत था वो सदर और सेक्रेटरी से बयान कर देना चाहिए था, इसलिए कि डाइस है और यहाँ पर इस तरीके से पेश रहना। बहरहाल आप तशरीफ़ लाई हैं, इसलिए कि हमारा पैगाम यही है, मजलिसों का पैगाम भी यही है। हम तो वो हैं कि वतीरा है मोहब्बत जिनका, प्यार से मिलता तो दुश्मन के भी हो जाते थे। इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आ जाए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते थे। इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आ जाए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते थे। किसने दुनिया को भी दौलत की तरह बांटा है, किसने तकसीम किए हैं या सासे सारे, किसने दीवार तफावुत की उठाई लोगों, क्यों समंदर के किनारे पे हैं प्यासे सारे। ये दौरे हाजिर का सवाल है जिसे बेहतरीन तरीके से यहाँ समाज सेविका साहिबा तशरीफ़ फरमा है। लीजिए हज़रात, जानशीन ख़तीब अकबर आज पूरी दुनिया में माशाल्लाह एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब जो कौम का चेहरा है, कौम की ज़बान है, कौम की पहचान है, कौम की फलाह बहबूद के लिए शबीना रोज़ मसरूफ़ अमल रहते हैं। इनका आराम इनके लिए आराम नहीं है, बल्कि जो कौम का आराम है वो अपना आराम मानते हैं। जो कौम का सुकून है उसी को ये अपना सुकून मानते हैं। जो कौम का इत्मीनान और सुकून और कौम का इत्मीनान और सुकून है उसी को ये अपना इत्मीनान और सुकून मानते हैं। रोज़े रोशन की तरह सुबह के तारे जैसे, सुबह रोशन की तरह सुबह के तारे जैसे। मोहतरम जनाब जानशीन ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब जिन्होंने अरसाए दराज तक बिल्कुल एक हक अदा किया है और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचाते रहे हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। अगर यहाँ नसीमुल हसन साहब बाकरी तशरीफ़ फरमा है और यहाँ समाज सेविका साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, जैसा भी इनका दस्तूर वो दरगाह में जा रही हैं, लिहाजा दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ नारा हैदरी। हाँ हाँ, मेरे मौला की शान ही ये है, यही हमारी पहचान और हमारी शिनाख्त है। इसलिए कि अली का चाहने वाला खुद मुख्तार हुआ करता है और यही वो नाम है जो इंसान को मुख्तार बनाता है, इंसान को हयादार बनाता है, इंसान को अमानतदार बनाता है। दोनों हाथ बुलंद करके हाज़रीन पूरी ताकत और तवानाई के साथ शाह मर्दां शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार नाराए हैदर नवाए बूज़रस्त अगरचे हल्के बिलालो कंबरस्त बोल नारा हैदरी। हाँ हाँ हाँ, नारा हैदरी।
तशरीफ ला चुके हैं आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब मिर्जा यासूब अब्बास साहब। तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है इसलिए कि यहाँ पर आने वाले सब मेज़बान हैं, सब मेंबर हैं, सब सेक्रेटरी और सदर साहिबान हैं, सब मौला के चाहने वाले हैं और सब मौला के ज़ादारों की जूतियाँ सीधी करने वाले हैं। बहुत बड़ा शरफ है जो इंसान को ये मैसर हो रहा है। यासूब अब्बास साहब ज़ेब मेंबर हो चुके हैं। मैं दो मिसरे आपके गोश गुजार करता हूँ कि रोज़े रोशन की तरह सुबह के तारे जैसे शहर में एक ही दो होंगे हमारे जैसे। मिर्जा यासूब अब्बास साहब तशरीफ ला चुके हैं और आज़ाद इसी के साथ साथ हमारे ईसा रज़ा साहब साबिक राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होते हैं हमारे साबिक राज्य मंत्री ईसा रज़ा साहब बराबर शिरकत करते हैं जो हमारे लिए बहुत हौसला मंदी के लम्हात हुआ करते हैं। लीजिए हज़रात ख़तीब ज़ेब मेंबर हो चुके हैं और इस मजलिस के बाद अंजुमन हुसैनिया मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में नोहा खानी और सीना सानी के फ़राइज़ अंजाम देगी। अंजुमन बाहर आज़ा का वक्त करीब तरीन हो चुका है। छजुपुरा सादात की कदीम तरीन अंजुमन जो कदीम तरीन अरसाए दराज से ये खिदमत अंजाम देती चली आ रही है नोहा खानी और सीना जनी और इसी के साथ जंजीर जनी के जरिए पुरसा पेश करेगी 2 बजे जो दादे राजू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस से जुलूस बरामद होगा। लीजिए हज़रात ये इंतज़ार की घड़ियाँ अजीब होती हैं, ये इंतज़ार की घड़ियाँ अजीब होती हैं, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है। नारा हैदरी।